Dear students, in today's video, we are going to read about the types of diagrams. So, statistical facts can be presented with the help of many types of diagram. When a very type of diagram should be chosen for which type of data it is difficult to determine. This ability and experience of a statistician is required for this. So you can see here 5 types of diagram are there. तो किस समय किस डायग्राम को चूज करना है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वो स्टैटिस्टिशियन पर डिपेंड करता है. सो टाइप्स आर, फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ curves and simple lines and bars. Two-dimensional diagrams are in the form of histogram, circles, squares. Three-dimensional diagram are in form of cubic or cylindrical diagram. These are also known as volume diagram. Next one is pictograms. These are in form of statistical charts and pictures. Cartograms or map diagram, statistical cartograms are included in this. So first of all, we will read about the first type of diagram, that is one-dimensional diagram. One-dimensional diagram are those in which only one dimension is measured in scale, that is height is used. Width or breadth is not used in these diagram. These are in the form of various line or bar diagram. So here you can see it is easy to create, understand such type of diagram. Dimensional diagram are following types. First one is line diagram. Second, simple bar diagram. Third, multi-bar diagram, subdivided bar diagram and subdivided bar diagram drawn on परसेंटेज बेसिस. तो जो वन डायमेंशनल बार डायग्राम है उनको ये 5 टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे. लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ डाटा is more and when the different in the values is not more. In a line diagram, a vertical line equal to the value of each category is drawn on the reasonable criteria. तो बार डायग्राम में यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हमें शो करने रहते हैं और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो हम सिंपल लाइन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये जो लाइन डायग्राम होती है वो अट्रैक्टिव नहीं होती. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम. तो आपको चूज करना है आप किस डायग्राम को यूज करना चाहते हो. तो आप देख रहे हो 20 स्टूडेंट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके वेट लिखे हुए हैं. वेट आप देख रहे हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 48, 50, 52, 54, 55 है ना. तो यहाँ पे सबसे कम वेट यहाँ पे दिख रहा है 48 और सबसे ज़्यादा वेट वाला दिख रहा है 78 सीरियल नंबर 20 के लिए. तो सीरियल नंबर हैज़ बीन टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वेट इज टेकन ऑन द वर्टिकल लाइन. The data can be presented in the form of line diagram in the following manner. यहाँ पे स्केल लिया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 kg. तो यहाँ पे आप देख रहे हो OX एक्सिस पे यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन किए गए हैं, जो क्वेश्चन में ये सीरियल नंबर थे, और यहाँ OY एक्सिस पे वेट दिया हुआ है. हमने देखा था क्वेश्चन में वेट 48 सबसे कम वेट था किसी स्टूडेंट का और सबसे ज़्यादा वेट दिख रहा है 78. तो ये 10-10 के स्केल पे हमने ये डिफरेंस लिए हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. तो अब ये लाइन डायग्राम के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सीरियल नंबर 1 का वेट कितना दिया हुआ है 48. तो आप ये देख रहे हो 1 के लिए 48, 50 से थोड़ा नीचे.
सेकेंड रोल नंबर के लिए हमने देखा था 50, तो ये 50 की लाइन पे है। थर्ड के लिए 52, 52 से थोड़ा 50 से थोड़ा ऊपर है। फिर अगला आप 54 देख रहे हैं, तो 50 और 60 के बीच के लगभग में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से लाइन डायग्राम बनाया जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है सिंपल बार डायग्राम। When a diagram has height and breadth similar and in proportion to the categories of data, it is called a simple bar diagram. In this type of diagram, equal distance is kept between the bars. Bar diagram can be vertical, horizontal, and simple bar diagram are especially suitable for showing data categories associated with individual values, time, series, place. तो यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम हम देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, शो द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो आप ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंसस ईयर 1951 से लेके 2001 तक का, और साथ ही साथ उसमें पॉपुलेशन दिया है करोड्स में। इसको हमें बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप देख रहे हैं, पिछला आपने देखा लाइन डायग्राम, और ये आ गया बार्स। इनको बार्स बोला जाता है, बार फॉर्म में ये प्रेजेंट किया गया है। तो ओ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ईयर को लिया गया है, सेंसस ईयर को। ओ वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को मेंशन किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 36.1 से लेकर 102.8 तक डिजिट्स हैं। तो हम एक नॉर्मल अपने मन से यहाँ पे डिफरेंस या क्लास इंटरवल्स ले सकते हैं। यहाँ पे 0 to 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो जितने यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं 120 तक लेने पर ये सभी वैल्यूज हमारे ग्राफ में मेंशन हो सकते हैं। तो हम देखें कि रिप्रेजेंट कैसे करें। तो 1951 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36.1। तो 36.1 कहाँ पे आया जाएगा, 40 से थोड़ा नीचे। तो ये यहाँ पे शो किया गया 1951। तो ये देखो आप, यहाँ पे जो बार्स बनाए गए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम रखा गया है, और इनमें भी ये एक ही साइज के रखे गए हैं। तो मेजर करना होता है। आप इसको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो और सिंपल पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड हमें क्या शो करना था, 1961 की वैल्यू कितनी दी हुई है सेंसस ईयर में, 43.9। तो ये 40 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यहाँ पे थर्ड दिया है 71 के लिए 54.8। तो ये 40 और 60 के बीच में 50, 54 थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। 71 के लिए कितना दिया हुआ है, 54.8। 81 के लिए 68.5, तो ये 68.5। 91 के लिए 84.4। 2001 के लिए 102.8। इसमें लाइंस के थ्रू इसको और अट्रैक्टिव करने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास डाटा है वो हम एक अच्छे अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिया है। अलग अलग कंपनी 10 कंपनीज के नेम्स दिए हैं और उनके मार्केट में कितना क्या कैपिटलाइजेशन है वो करोड़ रुपीस में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे कंपनी दी हुई है, ओ वाई एक्सिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीस करोड़ में दिया हुआ है। तो ये 10 कंपनी के नेम दिए हुए हैं, और ये आप देखो यहाँ 0 से 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो भी वैल्यू है
उस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड टाइप होता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो जो मल्टीपल बार डायग्राम होता है वो यूज किया जाता है कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू रिलेटेड डाटा ग्रुप्स और वेरियर फॉर different years or places. While drawing these type of diagram, various bars associated with the place or time are drawn jointly with one another. Then little space is kept and the bars associated with another place or time are drawn in the same sequence. Bars which represent different facts are shown by different symbols. But all the years or places associated with single fact are shown through similar symbol. Reference is made to interpret the symbols depicting the bar. Multiple bar diagram having two bars group are called double bar diagram. Diagram having three bars group are called triple diagram. तो यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम जो होता है, अब जब कंपैरिजन करना है टू और मोर कोई डाटा ग्रुप का किसी और ईयर्स के साथ या प्लेस के साथ, तब हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। जब इनको यूज किया जाता है तो उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स या कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका रेफरेंस भी दिया जाता है ग्राफ में। साथ ही साथ अगर टू बार ग्रुप्स हैं तो उसको डबल बार डायग्राम बोलेंगे, अगर थ्री बार ग्रुप्स हैं तो उसको ट्रिपल बार बोला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपके पास ईयर दिया हुआ है और फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दो चीजें एक ही साल के लिए रिप्रेजेंट की गई है। तो इनको दिखाने के लिए हमें किसका यूज लेना पड़ेगा? मल्टीपल बार डायग्राम का। तो ये आप देख सकते हो, OX एक्सिस पे ईयर दिया गया है, OY एक्सिस पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शो किया गया है। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5,000 करोड़ रुपीज। इंपोर्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सपोर्ट को वर्टिकल लाइन से शो किया गया है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं 1997 में जो इंपोर्ट था वो कितना था, अप्रोक्सीमेट 22-23 के आसपास था, जहाँ पे इस समय एक्सपोर्ट है वो 15 करोड़ रुपीस के पास था। 98 में जाएं तो ये अप्रोक्सीमेट 28 के आसपास और एक्सपोर्ट था 20 करोड़ रुपीस के आसपास। तो ये लाइंस के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अलग अलग दिखाया गया है। दो चीजें एक ही डायग्राम में दिखाई गई है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको डबल बार डायग्राम कहा जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बार डायग्राम्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बार्स है, तो ये क्या कहे जाएंगे इस एग्जाम्पल में? ये ट्रिपल बार डायग्राम्स है ना। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। यहाँ पे देखो फैकल्टी दी हुई है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड एजुकेशन। 3 भी नहीं 4 है यहाँ पे। मल्टीपल बार डायग्राम, तो यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं 2001 to 2, 2001 to 2, 2002 to 3, और इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, आए हैं, उनके बारे में। तो ये स्केल दिया हुआ है, साथ ही रेफरेंस दिया गया है कि किससे सिंबल किया गया है। तो ये जैसे ये फर्स्ट आप देख रहे हो 2001 ईयर के लिए आर्ट्स में 900 स्टूडेंट हैं, तो ये 900 शो किया गया है। साइंस के लिए 1100 है, तो ये इस तरीके से, फिर 400 और फिर एजुकेशन के लिए 100। 2001 एंड 2 पे आप देख रहे हो आर्ट्स के स्टूडेंट है 1100,
फिर साइंस के 900, कॉमर्स के 450 एंड एजुकेशन के 150। थर्ड आप कॉलम देखें 2002-03 में, इसमें 1200 है आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस में 1000 है, फिर उसके बाद कॉमर्स में 500 स्टूडेंट हैं, जबकि एजुकेशन में 200 स्टूडेंट हैं। तो हम इनसे एक ये ग्राफ देखकर ही, ये डायग्राम देखकर ही बता सकते हैं किस चीज में कमी हुई है, क्या बढ़ा है, कंपैरिजन कर सकते हैं। आप देखो जैसे 2000 और 2001 में आर्ट्स स्टूडेंट 900 थे और उस समय साइंस स्टूडेंट कितने थे, 1100 थे। जबकि अगले साल अब देखो यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, वो 1100 हो गए हैं, जबकि साइंस स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीज हो गए हैं, है ना। तो ये कंपैरिजन करना, अगर आप चाहें कि किसी ईयर में किसी फैकल्टी में क्या कंडीशन थी, तो आप ये बार डायग्राम्स के थ्रू आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। अलग अलग चीजें एक साथ शो की गई हैं, इसलिए अलग अलग पैटर्न बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्ट जहाँ पे आप शो कर रहे हो तो ये ऐसी लाइंस हैं, अगर साइंस शो कर रहे हैं तो ये डॉटेड लाइंस का यूज किया गया है तीनों जगह पे, अगर कॉमर्स का है तो ये इस तरीके से लाइंस किए गए हैं, और फिर एजुकेशन के लिए इस तरीके से चेक्स बनाए गए हैं। तो ये आप अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, आप उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने सेकेंड टाइप क्या पढ़ा, बार डायग्राम। यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम हमने देखा।